یہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے اور سنن نبی داؤد سے. ایک دن حضور کھڑے ہوئے, میں بتانا چاہتا ہوں حضور کا لنگر کیسا ہے, وہ جب دینے پہ آتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں. حضور ایک دن مدینے میں کھڑے ہیں اور حضور کے صحابہ موجود ہیں. حضور نے فرمایا یدخل الجنت من امتی 70,000, میری امت سے جنت میں 70,000 بندے بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. کتنے بندے؟ نہیں, آپ بھی ماشاءاللہ کم و بیش 1,000-1,500 تو بیٹھے ہیں یہاں پہ اس وقت, اور 1,000-1,500 بندے کی آواز میرے سے زیادہ زور والی ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا میری امت سے 70,000 کتنے جنت میں بے حساب, اور میں ایک ادنا سید زادہ ہوں, امام موسیٰ کاظم کی لڑی سے حسینی سید ہوں. میں اتنی دعا تو آپ کو دے کے ضرور جاؤں گا کہ اگر یہ جو عدد میں بول رہا ہوں کوئی آدمی بولے تو مولا کم از کم اس لسٹ میں اس کا نام تو آ جائے. حضور نے کیا فرمایا, کتنے لوگ؟ آپ پیچھے تک بولیے, آپ اتنی بھی آپ وہ نہ بنے, آپ حضور کا تو سودا لینے آئے ہیں نا, فیضان کا, نگاہ کا, محبت والا. حضور نے کیا فرمایا, کتنے افراد؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے, کتنے افراد؟ 70,000 میری امت سے جنت میں بے حساب. جن کو شفاعت سے حضور لے جائیں گے وہ الگ ہے, یہ بے حساب کی بات ہو رہی ہے. اور جب حضور فرمائے بے حساب تو پھر بے حساب. اب جب حضور نے فرمایا نا بے حساب, تو صحابہ بھی چونکہ حضور کے پڑھائے ہوئے ہیں نا, اور ان کا تزکیہ بھی حضور نے فرمایا ہے, انہیں بھی پتا ہے اب تنگی دامہ پہ نہ جا, اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ مائل باتا, اور بھی کچھ ماں. فوراً کہہ دیا زدنا یا رسول اللہ, حضور کچھ زیادہ فرمائے, ہمیں کچھ اور بڑھا دیں, آپ کی بارگاہ ہے, 70,000 نہیں, کچھ زیادہ کریں. اب سنیں حضور نے کیا فرمایا, لِكُلِّ وَاحِدٍ 70,000. پہلے تو 70,000 فرمایا تھا نا, اب ہر 70,000 میں سے ایک بندے کے ساتھ اور 70,000, 70,000 کے ہر فرد کے ساتھ اور 70,000. اب آپ میں سے کوئی بہت اچھا اسٹیٹسٹکس جاننے والا, میتھمیٹکس جاننے والا, اگر اورلی کیلکولیشن کر سکتا ہے تو مجھے بتا دے, نہیں تو موبائل ہر ایک کی جیب میں نکال کے 70,000 ضرب 70,000. لیکن آپ ہار جائیں گے, یہاں کرم کا دریا مصطفیٰ کا چل رہا ہے, یہاں کیلکولیٹر بھی ہار جائیں گے, لیکن آپ 70,000 ضرب 70,000 اس طرف آ جائیں, 70,000 ضرب 70,000 آپ حساب لگا لیں. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جب حضور نے فرمایا نا ہر ایک کے ساتھ اور 70,000, تو صحابی پھر بول اٹھے, کہا زدنا یا رسول اللہ, آقا ہماری تعداد میں اور بھی اضافہ فرمائے. تو پہلے تو حضور نے فرمایا تھا 70,000, پھر فرمایا ہر ایک کے ساتھ اور 70,000. اب جب صحابہ نے کہا حضور زدنا اور بھی زیادہ کریں, اب حضور نے عدد نہیں بولا, اب حضور نے ہاتھ کھولا. اب حضور نے یوں کیا, یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں, 142 والے حضرات ادھر دیکھیں. جب صحابہ نے بار بار کہا نا زیادہ زیادہ زیادہ, اب حضور نے کہا اب عدد جہاں ہار جاتے ہیں وہاں پہ جسم مصطفیٰ کام آتا ہے. اب حضور نے ہاتھ کھولا, فرمایا اتنا. صحابہ نے کہا زدنا یا رسول اللہ, حضور اور بھی زیادہ کریں. اور حدیث کے الفاظ ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قصیب, حضور ایک ٹیلے پر کھڑے تھے, بلند ٹیلے پر. پہلے تو حضور نے اتنے ہاتھ کھولے اور صحابہ نے کہا اتنا, تو اور بھی زیادہ کریں. اب حضور نے پہلے اتنا کھولا تھا تو فرمایا وہذا, یہ دیکھیں وہذا, اتنا کافی ہے. اب جب حضور کے ہاتھ پورے کھل گئے نا, آپ کو ان ہاتھوں کا کیا پتا ہے, آپ کو ان ہاتھوں کا کیا پتا ہے, یہ وہی ہاتھ ہے کہ دو عالم کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہاتھ خالی ہو تو دو جہان کی نعمتیں ہیں, اور جب ہاتھ ایسے کھل جائے, اور ان ہاتھوں کا آپ کو کیا پتا. حضور مدینے میں صلاۃ الکسوف پڑھا رہے ہیں, دوران نماز حضور نے ایسے اپنا دست مبارک کیا, ایسے کیا, اور پھر پیچھے کھینچ لیا. نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج عجیب معاملہ دیکھا آپ نے, نماز میں ایسے فرمایا اور پھر ایسے بھی کر لیا. حضور نے فرمایا دوران نماز مجھ پر جنت پیش کر دی گئی تھی, اور میں نے اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا,
اور میں نے چاہا کہ میں جنت کا ایک خوشہ تمہارے لیے توڑ لوں, تمہارے لیے. حضور جو بھی کرتے ہیں امت کے لیے کرتے ہیں, تمہارے لیے توڑ لوں. اگر میں توڑ لیتا تو وہ قیامت تک کے لیے تمہیں کافی ہوتا, تمہیں کوئی اور کھانے پینے کی احتیاج نہ رہتی. لیکن پھر میں نے چاہا تمہارا علم بالغیب, ایمان بالغیب قائم رہے, ایمان بالغیب قائم رہے. میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے. میں کہتا ہوں جو کھڑا مدینے میں ہو ہاتھ جنت میں چلا جائے تو وہ مصطفیٰ جب یوں ہاتھ کر لے گا تو عظمت کا عالم کیا ہوگا, وسعت کا عالم کیا ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زیادہ کرے, تو حضور نے ہاتھ کھول کے فرمایا ہاذا, اتنا کافی ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب کافی ہے. ابعد اللہ من دخل النار بعد ہاذا, اب جو اس کے باوجود بھی جہنم میں جائے خدا اسے جہنم میں ہی ڈال دے. جب حضور نے ہاذا کہہ دیا ہے تو پھر اب جنت میں سارے ہی داخل ہو گئے. اس کے باوجود بھی جو جہنم میں جائے وہ پھر جہنم میں ہی جائے. معلوم یہ ہوا یہ عطائے مصطفیٰ ہے. لیکن آپ حضرات کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے, یہ فیصلے تو قیامت کو ہونے ہیں جی. یہ فیصلہ تو میزان تو اسی لیے لگے گا, اعمال تو لیں گے. یہ فیصلہ تو قیامت کو ہوگا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. یہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے, فرمایا 70,000. تو عرض کیا یا رسول اللہ زیادہ کرے, اور 70,000 ہر ایک کے ساتھ. حضور زیادہ کر رہے ہیں, اور پھر عرض کیا اور زیادہ کرے, پھر حضور ہاتھ کھول رہے ہیں, پھر عرض کیا یا رسول اللہ اور زیادہ کرے. حضور اتنا فرما رہے ہیں, فیصلے تو قیامت کو ہونے ہیں, یہ حضور کیا فرما رہے ہیں. قرآن نے بتایا تمہیں معلوم نہیں ہے کل قیامت کو بھی کس نے جنت جانا ہے کس نے دوزخ جانا ہے, یہ فیصلہ بھی مصطفیٰ نے کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اس دن جو فیصلہ ہوگا مصطفیٰ تیری رضا سے ہوگا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں رضائے مصطفیٰ کا نام کیا ہے, فاطمۃ الزہرا. آپ رضائے مصطفیٰ کسے سمجھتے ہیں, داڑھی بڑھا لینا, امامہ پہن لینا, اچھا لباس پہن لینا, مسواک کر لینا, خوشبو لگا لینا, نا نا نا. حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میری جان کا ٹکڑا ہے, میری روح کا ٹکڑا ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. اور بدا فرمایا, بدا 7 اور 9 کے لیے بھی آتا ہے. گویا فرمایا اگر میرے جسم کے 10 حصے ہیں 9 حصے میری فاطمہ ہے. اور فرما دیا جو چیز اسے راضی کرے مجھے راضی کرتی ہے, جو اسے ناراض کرے مجھے ناراض کرتا ہے. معلوم یہ ہوا جسے رضائے مصطفیٰ چاہیے وہ رضائے فاطمہ ڈھونڈ کے لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, یا غوث اعظم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا خطاب کو سمیٹ رہا ہوں, سم اپ کر رہا ہوں سارے اپنے اس لیکچر کو. آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے خیرات لینی ہے, حضور کی عطا لینی ہے, اور لمبی چوڑی کوئی بات نہیں. جو ان کے نالین سے جڑ جائے, حضور کے نالین اقدس سے جو جڑ جائے نا, حضور تو اسے بھی خالی نہیں جانے دیتے. حضور تو اس کا بھی دامن بھرپور فرما دیتے. مسلم شریف کے اندر ہے اور بخاری شریف کے متن میں موجود ہے, کان غلام یہودی, ایک یہودی لڑکا تھا, یہودی لڑکا. اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ لڑکے جا بازار جا کے فلاں سودا لے کے آ جا, سودا لے کے آ جا. یہ باپ کے کہے سے سودا لینے کے لیے نکلا, جو چیز کہی یہ راستے میں نکلا, جس راستے پر یہ چلا حسن اتفاق کہ اسی راستے پر حضور بھی آ رہے تھے. اللہ ہمیں بھی وہ راہ عطا فرمائے جس راہ پہ حضور کا دیدار ہو جائے. یہ چلا اور اسی راستے پر حضور آئے, یہ ادھر سے, یہ ادھر, حضور ادھر سے آ رہے ہیں. اس کی نظریں حضور کے چہرے پر اور حضور کی نظریں اس کے چہرے پر پڑی. اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اسے دیکھا. جب اس نے حضور کا حسن دیکھا نا, میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا, حسن کو کہنا پڑا چہرہ نبی کا دیکھ کر, کائنات حسن کیا ہے مصطفیٰ کے سامنے. جب اس نے حضور کا حسن دیکھا نا, بے مثال, لازوال اور بے ہمتا, ایسا حسن ہی کسی کا نہیں. دل پکڑ کے بیٹھ گرفتہ اور بھول گیا کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا, کس لیے آیا, جا کہاں رہا.
दिल को पकड़कर रास्ते में ही बैठ गया और हुजूर के फिक्र व ख्याल में, जिक्र मुस्तफा में, हुस्न मुस्तफा के जलवों में मबहूत हो गया और काफी देर बैठा रहा। एक वक्त गुजर गया, आखिर से ख्याल आया तो अपने घर की तरफ वापस गया, लेकिन फिर हुजूर के ख्यालों में, हुजूर के ख्यालों में जब घर वापस आया तो वालिद ने पूछा, बेटे तेरा हाथ तो खाली देकर आऊं, तुझे सौदे के लिए भेजा था और कहला भेजा था कि जल्दी आई हो, इतनी देर लगा के आया है और खाली आया है। लड़का चूंकि हुजूर के इश्क में था ना, इश्क हो गया ना, ये इश्क भी अजीब चीज है, ये होने पे भी आए तो यूं होता है और अपनी मर्जी से नहीं होता, ये किसी की नजर से होता है और होता भी उसको है जो खुद नजर वाला हो, ये बेनजरों को नहीं होता। मैं ज़िम्नन यहाँ जुमला बोल दूं, जिन्हें फातिमा ज़हरा में खताएं नजर आए वो इश्क मुस्तफ़ा के दावे न करें, जिन्हें फातिमा ज़हरा लुक़मा हराम मांगती हुई नजर आए और अपनी माँ के लिए मिन्नतें करे, मेरी माँ को बुरा ना कहो, तेरी माँ इतनी आलीशान है और हसन हुसैन की माँ का कोई मर्तबा नहीं है। इश्क की बातें वो करें जिनको वाकई इश्क हो, फिस्क ना हो। आशिक चाहिए, फासिक नहीं चाहिए। यहाँ हुलिया नहीं देखा जाता, यहाँ इश्क का कुलिया देखा जाता है। तो इसको इश्क हो गया, लम्हे भर में हुजूर से इश्क हो गया। वापस आया तो वालिद ने कहा, सौदा किधर है? तो ज़बान हाल से कहने लगा, बाबा मैं वो आंखें तुझे कहां से लाके दूं जो तुझे वो सौदा दिखला दे जो सौदा मैं लेके आया, जो सरमाया मैं लाया हूं। वो तुझे आंखें कहां से दस्तयाब हो जो तुझे दिखा दे, जो तुझे बता दे मैं लेके क्या आया हूं। जब बाप ने इसका हाल देखा ना, इसका हाल देखा तो कहा, जाने दे, बेखुद हो गया है, दीवाना हो गया, वारफ्ता हो गया, बहकी बहकी बातें करता है। तो बाप ने उसको जाने दिया, लेकिन इसकी एक आदत बन गई और आदत करीमा, चूंकि हुजूर के हुस्न में ऐसा खो गया था, अब इसको चैन ही नहीं आता था। रोज निकलता और हुजूर के हुस्न के जलवे देखने के लिए, हुजूर का दीदार करने के लिए मस्जिद नबवी जाता। और रिवायात में आता है, काना यख़्दुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर की खिदमत करता था। और मुहद्दिसीन ने लिखा है खिदमत क्या थी, हुजूर के नालैन सीधे करता था। क्या करता था? नहीं, अगर आपको बात पहुंच रही है तो कह देना। हुजूर के नालैन, यूं तो सारी कायनात इन्हीं नालैन के सदके सीधी है, वो असल में अपनी तकदीर सीधी कर रहा था। नालैन सीधे करके वो अपनी तकदीर सीधी कर रहा था, अपनी आकिबत को सीधा कर रहा था। नालैन सीधे करता, एक नजर हुजूर के चेहरे को यूं देखता, टिकटिकी बांध कर देखता। आपको क्या पता है इस चेहरे को टिकटिकी बांध के देखना क्या है? कोई हजरत सौबान से पूछे, हुजूर के सामने बैठते और मस्जिद नबी में टिकटिकी बांध कर देखा करते। ये इस महफिल में भी टिकटिकी हर एक नहीं बांधता, कभी सौबान बांध के देखता है, कभी अबू बकर बांधता, और अबू बकर टिकटिकी बांधे तो अली के चेहरे पर बांधते, सौबान टिकटिकी बांधते हैं तो चेहरा मुस्तफा पर बांधते हैं। आखिर कुछ तो है ना कमाल इन चेहरों में, कुछ तो कमाल है। एक दिन हुजूर ने पूछ लिया, सौबान ये क्या करता है? कहा, या रसूलल्लाह, कल क़यामत के दिन फैसले हो जाएंगे, हम जन्नत में कहीं नीचे नीचे रह जाएंगे और आप बुलंद तरीन मकाम पर होंगे, फिर जाने इस अदना गुलाम को दीदार हो के ना हो। जी चाहता है आज जी भर के रुखे मुस्तफा को देख लो, सैर हो के मुस्तफा को देख लो। तो वो लड़का भी रोज हुजूर को देखने आ जाता, नालैन सीधे करता, हुजूर का चेहरा देखता, घर चला जाता, उसका काम हो जाता। इश्क की वो जो तिश्नगी थी उसको सहरियाबी मिल जाती और जुनून को फाका हो जाता, मरीज को शिफा मिलती। एक दिन वो बीमार हो गया, हदीस शरीफ के अल्फाज है और बड़ा अजीब पैर आया। मैं आपके लिए अपनी किताब को बहुत आसान करके पेश कर रहा हूं। बीमार हो गया, फमारिदा, मरीज हो गया, और मरीज भी ऐसा खुश नसीब कि जब मरीज हुआ ना, करीबुल मर्ग हुआ, तो वालिद से कह दिया कि मैं जिनका दीदार रोज करता था ना, मैं ये चाहता हूं कि मरने से पहले फिर मुखड़ा यार का देख लूं, एक दफा, एक बार हुजूर का दीदार फिर कर लूं, एक बार जाके मेरी तरफ से हुजूर की बारगाह में दरखास्त कर, या रसूलल्लाह मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता, आप ही मेरे घर तशरीफ ले आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। इस हाल के साथ बाप आया और कहा कि मेरा बेटा जो है वो आपका दीवाना है, आप
को देखे बगैर उसे चैन नहीं आता, बीमार हो गया, करीबुल मर गए, और उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि एक बार आपका दीदार करे। हुजूर ने सहाबा से फरमाया चलो चलते हैं उसकी तरफ, और हदीस के अल्फाज है फ़अताहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बीमार हुआ और बीमार भी इतना खुशनसीब कि उसकी बीमारी पर हुजूर इयादत के लिए आ गए। कितना खुशनसीब बीमार है कि इयादत को मुस्तफा आए, हुजूर आए, फ़क़ाइद इंदा रासिही, उसकी चारपाई थी, वो चारपाई पे लेटा हुआ था, आंखें बंद, हुजूर उसके सरहाने आकर बैठ गए। जब हुजूर उसके सरहाने बैठ गए ना, तो हुजूर ने अपना दस्ते नबूवत उसकी पेशानी पर यूं रखा, हुजूर ने ऐसे हाथ रखा। जब हुजूर ने अपना हाथ मुबारक रखा तो उसने अपनी आंखें खोल ली और खोल कर देखा महबूब आए हुए, हुजूर का चेहरा जी भर कर देखा। अच्छा, जब हुजूर ने हाथ मुबारक यूं रखा ना, तो इस मौके पर किसी शायर ने क्या अच्छा नक्शा खींचा, कहता है हाथ रख के मेरे सीने पे वो फरमाने लगे, हाथ रख के मेरे सीने पे वो फरमाने लगे, दर्द क्यों होता है, कब होता है, अब होता है। ऐसा मर्ज हर एक को नसीब हो कि उस मर्ज के इलाज के लिए खुद हुजूर ही तशरीफ ले आए। ऐसे हाथ मुबारक रखा, आंखें खोली, हुजूर को देखा, हुजूर ने फरमाया अस्लिम, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। फनज़रा इला अबीही, उसने कनखियों से अपने बाप की तरफ देखा और गोया आंखों ही आंखों में पूछा तेरी क्या मर्जी है, क्या तेरी भी इसमें रजा शामिल है। यूं तो वो पहले से हुजूर का माना हुआ था ना, लेकिन बाप से हाँ करवाना चाहता था ताकि मैं तो जा ही रहा हूं, कल ये भी आका की जुल्फों का असीर हो जाए। खुल्ला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फंदा गले में डाल के दुनिया लटक गई, इनको भी असीर कर दूं हुजूर के कदमों का। तो बाप ने कहा मुझसे पूछता है, बुलाया खुद है तो मुझसे क्या पूछता है। अते अबुल कासिम, जो मुस्तफा कहते हैं मान जा, तू तो बड़ा खुशनसीब है। इनकी जुल्फों के असीर होने के लिए तो सलमान फारिस से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, बिलाल हबशा से आ गए, दुनिया तो दूर दूर से इनके कदमों में कलमा पढ़ने आती है। तू तो बड़ा खुशनसीब है, खुद तेरे सरहाने तुझे कलमा पढ़ाने आए। फअस्लमा, उसने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हो गया। हुजूर उसके घर से बाहर निकले तो हुजूर ने एक जुमला बोला, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नारि बी, फरमाया उस रब का शुक्र है जिसने मेरी वजह से इसको जहन्नुम से बचा लिया। आप समंदरी वालों को बात समझ नहीं आई, आप वो नुक्ता छोड़ गए जहां से मैंने स्टार्ट लिया था। ये जन्नत कैसे चला गया, नमाज पढ़ी नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, कोई अमल नहीं, तो किया क्या, जोड़े सीधे किए, हुजूर के नालैन की खिदमत की थी। अरे जन्नत जाने का तो शॉर्टकट ही ये है, जो इनके कदमों में आ जाता है, जो इनके नालैन में आ जाता है, खुदा उसे जन्नत पहुंचा देता है। ये थोड़ी है अताए मुस्तफा, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। अब जब उसके तदफीन का वक्त आया, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई और आपसे इजाजत ले रहा हूं। कब्र खोदी गई, और जब कब्र खोदी गई तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मेरे दीवाने को कब्र में डालने से पहले आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले, माशूक की गलियों से जरा झूम के निकले, गली ही नहीं, हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, खुद हुजूर कब्र में आ गया। और जब कब्र पे चिले रखी जानी थी फिर तो हुजूर ने आना ही आना था ना, तब भी आना था। ये कितना बड़ा हुजूर का दीवाना है कि आने पर आना हुआ, तब भी आना था। दफन से पहले भी हुजूर आए हुए, दफन से पहले कब्र में उतरे और हुजूर पंजों पर चल रहे हैं, पंजों पर। और जब हुजूर कब्र से बाहर आए, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप पंजों पर चल रहे थे, क्यों? फरमाया मेरे इस दीवाने की कब्र में आसमान से इतने फरिश्ते आ गए कि कब्र में जगह तंग पड़ गई थी, कोई जगह ही बाकी नहीं थी कि जहां मैं कदम रखता, मुझे गवारा नहीं हुआ कि मैं कदम रखूं। हुजूर पंजों के बल चलते हुए कब्र से आखिर बार तशरीफ लाए। बताना ये चाहता हूं कि रामी कदर हजरात, जो हुजूर के नालैन तक आ जाए, आप हुजूर का मीलाद मनाने आए, बड़े खुशबख्त हैं आप हजरात, आपको हुजूर कभी खाली नहीं जाने देंगे। हमारी तो जो मेजबान महफिल है वो मेहमानों को खाली नहीं जाने देते, वो तो लंगर पेश कर देते हैं। और जब हम खुद हुजूर की बारगाह में पेश हो जाएंगे तो हुजूर क्या क्या लंगर ना अता फरमा रहे होंगे। ये है वो लंगर जो उसको भी मिल गया, जो हुजूर के नालैन से जुड़ गया। तो इसलिए जो हुजूर के नालैन से जुड़ जाता है, फिर आखिर हुजूर ने ये भी फरमाया अबू बकर इसकी चारपाई को कंधा दे,
उमर इसकी चारपाई को कंधा दे, बिलाल इसकी चारपाई को कंधा दे, सहाबा के कंधों पर उसकी चारपाई आ गई जिसने हुजूर के नालैन की ताजीम की थी। अच्छा, मैं अब इस पैराए पर खिताब खत्म नहीं करता, मैं एक और पैराए में ले जा रहा हूं। जो उन नालैन की ताजीम करे, नालैन क्या है? किसी जानवर का चमड़ा, उसे काटा गया और हुजूर के पांव मुबारक के साइज के मुताबिक ढाल कर हुजूर को पेश किया गया। हुजूर ने पहना, चाहे 10 सेकंड भी पहना हो या 1 सेकंड भी पहना हो, उसे दुनिया जूता नहीं कहती, उसे दुनिया नालैन कहती है। क्या कहती है? बोलो क्या कहती है? इतने भी सुन्नी तो आप ना बने ना, आप तो शर्म भी करनी चाहिए कोई थोड़ी सी। उसे दुनिया नालैन कहती है। क्या कहती है? क्या कहती है? अच्छा, जो जानवर, किसी गैर जानवर का, किसी जानवर का चमड़ा काटा जाए, दवागत के बाद हुजूर के लिए पेश किया जाए, कदमों के नीचे आ जाए, वो तो नालैन है, और उसे आप सीने पे लगाते हैं, और है भी असली नहीं, चाइना का बना हुआ, चाइना का बना हुआ। और ये हुजूर ने कभी हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन आप पहनते हैं, कभी सीने पे, कभी माथे पे, कभी हुजूर ने हाथ भी नहीं लगाया। नालैन का अक्स है, तिमसाल है, तिमसाल, ओरिजिनल नहीं है, कॉपी भी नहीं है, और दूर कॉपी की कॉपी भी नहीं है, और हो सकता है असल की शक्ल भी ना हो, लेकिन आप इतनी ताजीम करते हैं प्लास्टिक की नालैन की कि आप सीने पे और माथे पे लगा देते हैं। वाह सुनियो, बड़े आशिक हो आप। वो जानवर का चमड़ा जो हुजूर के पांव के नीचे आ जाए, और उसके तिमसाल की इतनी ताजीम कि आप सीने पे लगाते हैं, जिसे हुजूर कदमों के नीचे रखें, उसकी नकल की इतनी ताजीम है, और जिसे हुजूर कंधे पर बिठाएं, जो पांव के नीचे आ जाए उसे नालैन कहते हैं, और जो कंधे पर आ जाए उनको हसनैन कहते हैं। नारे तकबीर, जागो यार जरा, नारे रिसालत, दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जो हुजूर के कदमों के नीचे आ जाए, मैं आपसे कहलवाना चाहूंगा, चूंकि मेरे अजदाद है ना, मैं उन्हीं की औलाद से हूं। जो पांव के नीचे आ जाए उसे नालैन कहते हैं, उसे बोलिए। सुन्नी आजकल नालैन का बहुत अदब करते हैं, इधर भी लगाते हैं। मैं कहता हूं शर्म नहीं आती? जो पांव के नीचे आ जाए उसका तो इतना अदब करते हो, और जो कंधों पर आ जाए, जिसे मुस्तफा ने कंधों पर बिठाया हुआ हो, हर एक के शाया निशान मिंबर बिछाया जाता है। किबला पीर साहब तशरीफ लाए, आपने ये मिंबर बिछाया है, मैं आया मुझे यहां बिठाया है। कभी ये भी तो सोचा होता कि हुजूर ने हसन हुसैन को कहां बिठाया है? कंधे पर बिठाया तो शान नबूवत पर बिठाया है, तो हुजूर ने ऐलान करके बताया है, जिन हसन हुसैन की मैं इतनी ताजीम करता हूं, उम्मत पर उनकी ताजीम कितनी वाजिब होगी। नालैन का अदब किया करो, लेकिन मैं उसे सुन्नी मानता ही नहीं जो अदब नालैन का तो करता हो, लेकिन फिर तकरीरों में यह भी कहता हो कि एक तरफ सारी दुनिया के सैयद खड़े हो और दूसरी तरफ यजीद खड़ा हो, मैं यजीद की हिमायत करूंगा। आपने ये बात सुनी मुझसे, और ये बात शायद आपने क्लिप में भी नहीं सुनी उस मौलवी की, जिसने ये कहा सारी दुनिया के सैयद एक तरफ हो जाएं, जो आज के सैयद है, एक तरफ खड़े हो जाएं, जो फातिमा ज़हरा की वकालत कर रहे हैं, जो उनके नामूस के नारे लगा रहे हैं, ये सारे एक तरफ खड़े हो जाएं, और यजीद एक तरफ खड़ा हो। लाहौर का आदमी है, लाहौर का। मैं आपको अब जगाना चाह रहा हूं, खिताब तो खत्म हो गया। ये भी अताए मुस्तफा है कि अगर आपको अदब अहले बैत का मिल जाए, उसने कहा यजीद इधर हो, सैयद इधर हो, मैं यजीद की हिमायत करूंगा। अच्छा, मैं समंदरी वाले खामोश सुनियों से पूछता हूं, आप किसकी हिमायत करेंगे? इधर सैयद खड़े हैं सारे, और इधर यजीद खड़ा है, सबकी एक आवाज होना चाहिए, सैयदों की। किसकी हिमायत करेंगे? नहीं, जो वाकई करेगा जरा अपने हाथ को झंडा बना के बताए, किसकी हिमायत करोगे? जो वाकई करेगा वो तो करे, जो मजबूरी से हाथ खड़ा कर रहा है बेशक नीचे कर ले, और बाकी पहचान ले है कौन। किसकी हिमायत करोगे? सैयदों की, यानी इमाम हुसैन की। सैयद उन्हीं की औलाद है ना, इमाम हुसैन की। लेकिन आपकी सफों में वो काली भेड़े आ चुकी है, जो हुलिया तो सुनियों वाला बनाया हुआ है, लेकिन है अंदर से कट्टर यजीदी। जरा ऐसे अपने कानों को सारे हाथ लगाओ, ऐसे मौलवियों से हमारी तौबा। लगाए कानों को, ऐसे मौलवियों से हमारी, जिन्हें हुजूर के अहले बैत में ऐब नजर आते हो, ऐसे मौलवियों से हमारी, जो रसूलुल्लाह की बेटी को खताकार कहे, ऐसे मौलवियों से हमारी, जो रसूलुल्लाह की बेटी को लुक़मा हराम मांगने वाली कहे, ऐसे मौलवियों से
मुकाबले में यजीद का हामी हो ऐसे मौलवी से हमारी। हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी, हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी, और हम कयामत तक हुसैनी रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आखिरी पैगाम ये हुसैनियत का दे के आप अल्लाह तक जा रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको नालैन का अदब भी अता फरमाए, आपको हसनैन का अदब भी अता फरमाए। इसकी भी बड़ी शान है, लेकिन जो शान इसकी है वो फकत नालैन की नहीं है, ये तो जूती है और वो रसूलुल्लाह का खून है। अल्लाह ताला आपको रसूलुल्लाह के खून, रसूलुल्लाह के जिस्म के टुकड़े और रसूलुल्लाह के जिस्म के हिस्स, उनके अदब और एहतराम की तौफीक अता फरमाए और आलो अस्हाब की मोहब्बत पर हम सब का खातिमा फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अल्लाह तमाम हज़रात को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।